We're going to start with another question of market size and market share variance. I believe it's an important question, and you guys should first attempt it at your own and then come back to this recording, right? So, those who are stuck and unable to do this question shall start, right? So, let's begin this question. The first requirement is I used to read requirement first. So the first requirement is explain why business calculate market size and market share variance. So it's typical um a very definition kind of requirement. I mean, you just need to tell the examiner why you need to do so. So it's not something which is actually connected with this question. Or you may connect, if you want to give an example, you may choose the scenario and give an example. Calculate the total. The second requirement says that calculate the total market size variance and total market share variance for MTC for quarter number 2, right? So this is basically the first requirement which we have to do. And then part C, you have to make a performance analysis. So we'll do it later, right? MTC is one of the several agencies in Sectofia, probably supplying medical staff, both nurses and doctors, under temporary working contracts to local hospitals. So this is basically what the company is doing. Company is actually supplying medicine and nurses and doctors, right? Information regarding the size of market in the region for the supply of medical staff is as follows. So this is not the information about the company. This is actually information about the industry, right? So keep this thing in your mind. Quarter 1 and quarter 2, right? This is actually what happened, right? So this is basically kind of actual information which is given here, right? The size of national market for supply of temporary nurses was increased from 14 million to 18.9 million. Achha, keep this one thing in your mind, that this is dollars in million. This is not units. This is the revenue. And the size of national market for supply of temporary doctors is increased from 8 million to 8.2 million. So which means what? Which means that there is a massive increase in temporary nurses, but as far as doctors are concerned, overall market remains same. There's a very slight increase in market size of doctors. Acha, then the question says that the increase in the national market for supply of temporary nurses. This is actually about this one, temporary nurses, is due to shortage of full-time nurses in the region. All agencies in the region, including MTC, charge a single market rate for the supply of each type of staff. Now, why this line is important, I will tell you later. $1,000 per week for supplying a nurse, which is $1,000 per week for supplying a nurse, and $2,000 per week for supplying a doctor. So there's a flat rate of 1,000 per nurse and 2,000 per doctor for the whole industry. MTC held 30% of the market share for the supply of temporary nurses and 40% for the supply of temporary doctors. So the market share is also given here. The company uses quarterly rolling budgets. So for those who don't know what is the rolling budget, let me tell you. Rolling budgets are usually prepared in a situation when there is so much uncertainty in the environment. Like in case of Pakistan, we are unable to predict what is going to happen in the coming days. So obviously, it's useless to prepare budget for 12 months. We cannot do that. So what we can do is we can prepare a budget for, let's say, a quarter or maybe a month, depending upon how the uncertainty is, what is the intensity. Right now, we only can prepare budget for a month, and that is also uncertain, right? So what we do is we prepare budget for, let's say, a quarter, and then we see what happened in quarter 1, and then based on those results which we got in quarter 1, we prepare budget for the next quarter, right? And then by seeing what happened in quarter 2, we prepare budget for quarter 3. So this is basically what we do in case of rolling budgets. So at the end of quarter number 1, it is prepared it prepared sorry at the end of quarter number 1, it prepared its budgeted revenue figures for quarter number 2.
It is based on, acha, okay, fine. What? Yeah, okay, fine. It prepared its budgeted revenue figures for quarter two. It based these budgeted figures on the assumption that the company would continue to maintain the market share it had in quarter number one. So this is basically the market share of quarter number one. This was the market share which company had in quarter number one, and the company is reasonably sure that they will continue to maintain the same market share in quarter number two. So we can use these figures for quarter number two as well, right? These figures can be used in quarter two as well. It is assumed, now there is another one more assumption. It is assumed that it would maintain its standard contribution margin of 80% for both nurses and doctors. So this is another assumption, that the company is assuming that we will continue to work for 80% contribution. So how this information is relevant? Okay, we'll see it later. Okay, so total revenue from supply of the actual figures for quarter number two are as follows. Total revenue from supply of nurses, revenue which the company got is 5.3 million. Revenue from the supply of doctor which company got is 3.6 million, and the actual contribution to sales ratio is 75% instead of 80%. So profitability reduced by 5%. And the next requirement is related to requirement number C, so we will do it later. Now what we are going to do, we are going to start with the concept of market size and market share variance. Try to pause this video and think, do we calculate how we are going to do that? I mean, is there a requirement to calculate market size and market share variance for temporary doctors and nurses separately? Or we will calculate market size and market share variance for doctors and nurses combined. I mean, what I'm trying to ask is, जो हमने क्लास में किया था वो ये था कि हमारे पास मॉडल ए था, मॉडल बी था और मॉडल सी था, और मैंने कहा था कि देखो यार, जब कभी भी हम मार्केट साइज़ या मार्केट शेयर कैलकुलेट करते हैं तो हम ये नहीं देखते कौन सा मॉडल है। हम कहते हैं कि जी सैमसंग का मार्केट शेयर है, सुजुकी का मार्केट शेयर है, टोयोटा का मार्केट शेयर है, एप्पल का मार्केट शेयर है, राइट। सो पॉइंट ये है कि अब यहाँ पे क्या मार्केट साइज़ और मार्केट शेयर एक ही कैलकुलेट होगा या टेम्परेरी नर्सेस का और टेम्परेरी डॉक्टर्स का अलग अलग कैलकुलेट होगा, ये सोचें ज़रा। ट्राई टू पॉज दिस वीडियो। यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। द फर्स्ट रीज़न इज़ द मार्केट इज़ डिफरेंट फॉर बोथ, राइट। मार्केट साइज़ ही उसने डिफरेंट कर दिया, और ऑब्वियसली उसने कहा कि जी नर्सेज जो हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज था, डॉक्टर्स में कोई चेंज नहीं है। मार्केट शेयर आपका दोनों में अलग अलग है, एक में 30% है, एक में 40% है। सो ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम इसको कंबाइन करें, राइट। सो अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? देखें, मार्केट साइज़ और मार्केट शेयर में हम तीन फिगर्स लेते हैं। एक हम लेते हैं, लेट मी ट्राई टू ओपन द कैलकुलेटर एज वेल। ओके, सो अच्छा, अब यहाँ पे कैलकुलेशन में सबसे पहले तो हमें तीन फिगर्स चाहिए होती है। एक हमें चाहिए होती है बजटेड सेल्स, या चलें इसको यूँ कर लेते हैं। फर्स्ट फिगर विच वी नीड इज़ बजटेड सेल्स, देन वी नीड रिवाइज सेल्स, एंड देन वी नीड एक्चुअल सेल्स, राइट। अब सबसे पहले आप ये सोचें कि बजटेड सेल्स ऑफ नर्सेस क्या होगी। देखिए, बजटेड सेल्स उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई, ठीक है। क्वेश्चन में बजटेड सेल्स का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो कि हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। वी हैव टू कंसिडर द अजम्पशंस इन दिस केस, राइट। अजम्पशन में उसने दो बातें की थी। एक तो उसने कहा था कि जी व्हाट वी आर अज्यूमिंग कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो वही रहेगा जो हमने पिछले क्वार्टर में सोचा था,
राइट। तो जो पिछले क्वार्टर में सोचा था हम वही मार्केट शेयर एज्यूम करके चल रहे हैं। एक तो ये अजम्पशन ली थी। दूसरी अजम्पशन उसने ली थी कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आपका सेम रहेगा। अच्छा, अब अगर हम इस वाले पॉइंट पे चले ना, या चलें हम इस टेबल पे आते हैं, मेरे ख्याल में ये टेबल हम देख लेते हैं, वो पॉइंट शायद अभी उसको हम देखते हैं, होल्ड पे डालते हैं। देखिए, अब क्वार्टर वन और क्वार्टर टू की डिटेल्स उसने यहाँ पे क्यों दी हैं, अब ज़रा इसके बारे में सोचें। देखिए, ये दोनों ही एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और उसने कहा था कि जो भी हमने क्वार्टर टू का बजट बनाया है वो बेस कर रहा है क्वार्टर नंबर वन पे। ठीक है, इसका मतलब जो हम क्वार्टर टू की सेल्स को हम बजट कर रहे हैं ना, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है क्वार्टर नंबर वन की सेल्स के ऊपर। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखें, हमने देखा कि क्वार्टर वन में इंडस्ट्री में क्या हुआ, और उस क्वार्टर वन की इंडस्ट्री में जो भी हुआ उसको हमने देखा, ओके फाइन, अच्छा ये हुआ है, तो इसका मतलब क्वार्टर टू में बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड इन क्वार्टर वन हम बजटेड सेल्स एस्टिमेट कर रहे हैं, हम बजटेड सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बजटेड सेल्स थी इंडस्ट्री की वो थी 14 मिलियन की। राइट, 14 मिलियन की आपकी बजटेड सेल्स थी रेवेन्यू में, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जो मैंने शुरू में कहा था कि सिंगल मार्केट का जो डिस्कशन है वो हम थोड़ी देर बात करेंगे। सिंगल मार्केट रेट सोचें यहाँ पे अब क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अगर हर कंपनी का रेट अलग अलग होता तो आप यूनिट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं किसी और प्राइस पे मेरे पास से जो नर्स जा रही है वो किसी और प्राइस पे जा रही है, दूसरी कंपनी से जा रहा है वो किसी और प्राइस पे आ रहा है, तो आप क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते उस केस में। सो यहाँ पे फ्लैट रेट देने का बेसिक रीज़न ये है कि हम क्वांटिटी निकाल लें। सो 14 मिलियन डिवाइडेड बाय, अच्छा, टेम्प्रेरी नर्स का रेवेन्यू कितना था? नर्स का रेवेन्यू जो था वो था 1000। राइट, सो ओवरऑल इंडस्ट्री में तकरीबन 14,000 की सेल्स हुई है। 14 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000, इंडस्ट्री में जो नर्सेस की सेल्स हुई है वो हुई है 14,000 यूनिट्स कह लें, सर्विसेज कह लें, वट एवर यू कॉल इट। और मेरा जो मार्केट शेयर था उसमें वो था तकरीबन 30% का। ये बन रहा है 4200। तो इसका मतलब जो बजटेड सेल्स थी वो थी 4200 की फॉर नर्सेस। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिएगा अगर कुछ मसला हो तो। अच्छा, अब अच्छा, डॉक्टर्स को भी चलें साथ साथ ही कर लेते हैं कि डॉक्टर्स में क्या होगा। डॉक्टर्स का जो क्वार्टर वन की जो सेल्स हमने एस्टिमेट की थी वो 8 मिलियन की थी। ठीक है, और इसका जो रेवेन्यू था पर सर्विस वो था 2000, तो ये है 4000। नहीं, 4000 तो हमारे पास आया मार्केट साइज। $4,000 सर्विसेज इन द होल इंडस्ट्री, और मेरा शेयर उसमें कितना परसेंट है? 40%। तो ये बन जाएगा 1600। ठीक है, ये हो गया 1600। अच्छा, रिवाइज सेल्स कहाँ से आएगी? अब हुआ क्या, हुआ ये कि क्वार्टर टू के जब रिजल्ट्स आए ना मेरे पास, तो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स ये मिले 18.9 मिलियन के। तो इसका मतलब ये है सर कि जो मार्केट में जो चेंज आया उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी एक्चुअल मार्केट 14 मिलियन के बजाय 18.9 पे चली गई। सो 18.9 मिलियन पे अगर आपकी मार्केट जाती है और आपका एवरेज रेवेन्यू 1000 है नर्सेस का, तो इसका मतलब 18.9, ये बनता है 18,900।
ठीक है। अच्छा, 18,900 में मेरा मार्केट शेयर, हमने तो सोचा था मार्केट शेयर हमारा सेम रहेगा, तो मार्केट शेयर इज़ गोइंग टू बी अराउंड 30%। सॉरी, ये होना चाहिए 5670। सो रिविजन में इट शुड बी 5670। और डॉक्टर्स के केस में क्या हुआ, डॉक्टर्स के केस में तो आपका मार्केट साइज में कोई चेंज नहीं आया। इट वाज 8.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 2000, सो तकरीबन 4100 का मार्केट साइज है ओवरऑल। सॉरी, 2000 ये बन रहा है 4100, और टेक्निकली उसमें मेरा मार्केट शेयर होना चाहिए था 40%। तो अगर हम इसी का 40% लेते हैं तो दिस विल बी 1640। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया दो बातें। अच्छा, एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है आपकी, अब ज़रा एक्चुअल सेल्स चेक करें। एक्चुअल सेल्स कितनी है आपकी? एक्चुअल सेल्स का भी उसने रेवेन्यू दिया है, उसने आपको वो नहीं दिया, क्वांटिटी नहीं दी, बट चूंकि उसने सेलिंग प्राइस कहीं पे चेंज होगी ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो एज्यूम के सेलिंग प्राइस सेम रहेगी। सो एक्चुअल सेल्स आपकी हो गई 5.3 मिलियन की, डिवाइडेड बाय 1000 इज 5300, और यहाँ पे ये हो गया है 3.6 मिलियन 1800। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग द होल पीरियड। अच्छा, अब अगर मुझे इसमें से कैलकुलेट करना है मार्केट साइज वेरिएंस, पहले हम नर्सेस की बात करते हैं। मार्केट size variance will be what? The difference between budgeted sales and actual sales. 4200 की budgeted sales थी, लेकिन market expansion की वजह से we were expecting कि ये 5670 तक आ जाएंगी, क्योंकि market expand हुई है ना। तो market expansion की वजह से variance तो favorable है। Multiply by what? Multiply by standard contribution per unit होता है। अच्छा, अब एक ही प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो इसमें एवरेज कंट्रीब्यूशन हम नहीं लेंगे, हम सिंपल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेंगे। सो नर्सेस का कंट्रीब्यूशन कितना था? उसने कहा था कि जी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इट्स गोइंग टू बी अराउंड 40%, 80%, और जो आपकी सेलिंग प्राइस थी, रेवेन्यू पर यूनिट था, वो तकरीबन 1000 का था। तो इसका मतलब है 1000 मल्टीप्लाई बाय 80% इज़ अराउंड 800। So 4200 minus 5670 times 800 is around 1176. ठीक है, ये तो हो गया फेवरेबल। अच्छा, मार्केट शेयर वेरिएंस में क्या हुआ? नर्सेस की शेयर वेरिएंस में जो सेल्स आपकी 5670 तक आ जानी चाहिए थी, वो सेल्स कितनी हुई? वो से 5300 तक पहुंची। तो सर आप मार्केट के हिसाब से अपनी पेस मेंटेन नहीं कर पाए। सो ये वेरिएंस हो जाएगा 5670 टाइम माइनस 5300, 370 टाइम्स 800, 296,000। एडवर्स फेवरेबल, एडवर्स, क्योंकि एक्चुअल सेल्स कम हुई हैं आपकी। सो टेक्निकली देखा जाए तो आपका मार्केट शेयर जो है वो कम हो गया है नर्सेस के केस में। व्हाट अबाउट डॉक्टर्स? डॉक्टर्स के केस में मार्केट साइज वेरिएंस हो गया आपका 1600 माइनस 1640। तो मार्केट तो डॉक्टर्स की भी एक्सपेंड कर गई, और कंट्रीब्यूशन था आपका 80%, सेलिंग प्राइस थी आपकी 2000 पर वीक। सो 1600 बनेगा। सो 1600 टाइम्स 40 इज 64,000। अच्छा, मार्केट शेयर वेरिएंस फिर कितना हो जाएगा? मार्केट शेयर वेरिएंस हो जाएगा
1640 तक हो जाना चाहिए था। हुआ क्या? हुआ ये कि हमने इसके 1800 सर्विसेज दी, सो दिस इज़ फेवरेबल। $256,000 फेवरेबल, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेड सेल्स थी उससे तो ज़्यादा सेल्स की हमने। सो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि Q2 में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नर्सेज में थोड़ी ख़राब हुई है, बट एज़ फार एज डॉक्टर्स आर कंसर्न इट्स गुड, इट्स फाइन, राइट। सो ये तो हो गया इसका पार्ट ए। अच्छा, अब पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी। पार्ट सी में उसने क्या कहा था? अब पार्ट सी में उसने कहा कि अब वो आ गया कंपैरिजन पे। उसने कहा कि देखो यार, अब ज़रा इसको पढ़ें और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको ज़रा, ये इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा, और इसको अब हम कंपेयर करेंगे कि वो उसके साथ जो इंडस्ट्री में हुआ। द मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरियंस हैव ऑल्सो बीन कैलकुलेटेड फॉर Q2 for one of MTC's competitors, Cheat Company, right? And market size variance is adverse, and market share variance is favorable. Market size variance for doctors is adverse, and market share variance for doctors is favorable. And overall उसने आपको चीज़ें दे दी हैं। Cheat Company holds the same percentage of each market at MTC. It also uses rolling budgets and prepare the budgeted revenue figures using exactly the same assumptions at MTC. However, when Cheat Company's sales director had to provide the market size for Q2 to accounts department, he deliberately reported these figures 30% lower by excluding the market segment relating to maternity units. The accounts department was unaware of this, right? सो अब उसने कहा कि यार एक काम करें आप, ये उसने बेसिकली बात की है चीट कंपनी की, प्रॉब्ली दैट इज़ द रीज़न दे गिव इट अ नेम ऑफ चीट कंपनी। अच्छा, अब उसने कहा डिस्कस द एक्शंस ऑफ द सेल्स डायरेक्टर एट चीट कंपनी एंड हाउ दिस मे हैव इम्पैक्टेड ऑन द वेरिएंसेस व्हिच हैव कैलकुलेटेड। अच्छा, शायद ये कंपैरिजन के ऊपर फिर बात नहीं कर रहा। इसने क्या कहा? इसने कहा कि जी ये भी Q2 की बात है और जो हमने कैलकुलेट किया है वो भी Q2 है। अब देखिए, सरप्राइजिंगली एक चीज़ बड़ी अजीब सी है, मार्केट साइज वेरिएंस जो है, पता नहीं आप लोगों ने ये नोट किया या नहीं किया, मार्केट साइज वेरिएंस इसमें एडवर्स दे रहा है नर्स में, और मार्केट साइज वेरिएंस इसमें भी एडवर्स है। मार्केट साइज वेरिएंस का मतलब क्या है? मार्केट कंडीशंस। अब जो हमने कैलकुलेट किया है मार्केट साइज वेरिएंस, वो मार्केट साइज वेरिएंस दोनों में फेवरेबल आ रहा है, राइट? दोनों में नहीं, हाँ, दोनों में फेवरेबल आ रहा है, क्योंकि मार्केट तो दोनों में एक्सपेंड हुई है, इधर भी एक्सपेंड हुई है, इधर भी एक्सपेंशन हुई है। सो द क्वेश्चन इज कि अगर मार्केट एक्सपेंड हुई है, सो व्हाई दिस मार्केट शेयर इज एडवर्स? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? और फिर मार्केट शेयर फेवरेबल आए उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब ज़रा इसको देखें और इसको ज़रा पॉज करके इस वीडियो, इस पॉइंट से ज़रा कनेक्ट, इसको ज़रा मैं मिटा दे, इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से। ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, अब कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। सो मैं ज़रा वीडियो पॉज कर सोचें इस बारे में कि इसको कनेक्ट इस वाले पैराग्राफ से कैसे करना है। ऑलराइट, अच्छा देखें, अब आप सोचें हुआ क्या। आई एम रिपीटिंग, हमारा जो हमने अब तक जितनी कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंगली तो मार्केट एक्सपेंड हुई है, और मेरे पास भी जो भी मार्केट साइज वेरिएंस है वो फेवरेबल आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी में कुछ तो मसला है। सवाल ये पैदा होता है कि उसकी वजह से हुआ क्या। देखें, अगर आपने अपने मार्केट साइज को, अगर आपने मैटरनिटी का पूरा एक यूनिट अपनी कैलकुलेशन में नहीं लिया, इसका मतलब मार्केट में जो एक्सपेंशन आया है आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया।
और जब मार्केट के एक्सपेंशन को आपने कंसिडर नहीं किया तो इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी बजटेड सेल्स थी, आपका बजटेड जो मार्केट साइज था वो 10,000 यूनिट्स का था, ठीक है, ये आपका बजटेड मार्केट साइज है, और आपका जो मार्केट शेयर था वो उसमें 30% था। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 3,000 यूनिट जो हैं वो आपके सेल आउट होने चाहिए थे। अच्छा, अब एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में मार्केट एक्सपेंड होके तकरीबन 15,000 पे आ गई। तो टेक्निकली 30% के लिहाज से मेरा मार्केट शेयर होना चाहिए था 4,500, मेरी सेल्स 4,500 तक आ जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार ये तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने 1,500 को डेलिबरेटली 15,000 रिपोर्ट करने के बजाय मैंने इस 15,000 को रिपोर्ट किया लेट्स से 12,000। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जब मैंने अपना रिवीजन चेक किया ना, तो रिवीजन हुआ 3,600, ठीक है। और सपोज मेरी जो एक्चुअल सेल्स थी वो 4,000 की थी। तो अब अगर मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार अब अगर मैं इस एक्चुअल फिगर को, जो यहाँ पे जो एक्चुअल सिनेरियो है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो होगा क्या? मुझे मेरी परफॉर्मेंस क्या शो कर रही है कि यार बजटेड सेल्स तो 3,000 की थी और मार्केट एक्सपेंशन की वजह से मेरी जो सेल्स हैं वो 3,600 तक आ जानी चाहिए थी। ये हो गई रिवाइज सेल्स। लेकिन मैंने 3,600 की बजाय 4,000 यूनिट सेल किए, तो मुझे परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है अपनी, क्योंकि एक्चुअल सेल्स रिवाइज से ज़्यादा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ है? एक्चुअल में क्या हुआ है? एक्चुअल में ये हुआ है कि आपने डेलिबरेटली, चूंकि अपना मार्केट साइज कम दिखाया है ना, मार्केट में जो एक्सपेंशन हुई है उसको कम दिखाया है, उसकी वजह से आपकी सेल्स जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वो फिगर किसी के सामने आई नहीं। तो उससे क्या हुआ? आपकी जो इनएफिशिएंसी है वो छुप गई। और कंपनी में ऐसा देखने में लग रहा है कि यार परफॉर्मेंस आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, और आपका चूँकि मार्केट शेयर वेरिएंस फेवरेबल है, यहाँ पे आपकी ज़्यादा यूनिट सेल आउट हो रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि आपका मार्केट शेयर बड़ा है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट द केस, राइट। और इसने तो एक और कोई और ही ज़बरदस्त काम किया ना, इसने कहा कि भाई मार्केट तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि मार्केट साइज वेरिएंस ही एडवर्स है। अब इसने कहानी का खुलासा यूँ किया कि बजटेड सेल्स 10,000 की थी, ठीक है, सॉरी, मार्केट साइज जो है वो आपका 10,000 का था। उसने क्या किया? उसने कहा कि जी रिवाइज जो जो एक्चुअल मार्केट हुई है, वो एक्चुअल मार्केट साइज जो है वो तकरीबन 9,000 यूनिट्स का है। तो आप तो पिक्चर दिखा रहे हैं कि जी मार्केट तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, हालांकि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है, मार्केट में तो 12,000 यूनिट्स तक आ गई है सेल्स। सो दिस इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम। सो अब उसने यहाँ पे क्या, अच्छा, अब मार्केट शेयर वेरिएंस आप दोनों में फेवरेबल दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने मार्केट साइज को ही चेंज कर दिया, तो बेस फिगर ही चेंज हो गई। आपने रिवाइज सेल्स को ही कम कर दिया, तो रिवाइज सेल्स के मुकाबले में तो जाहिर सी बात है फिर एक्चुअल सेल्स ज़्यादा हो गई है आपकी। सो डिस्कस द एक्शंस ऑफ द सेल्स डायरेक्टर ची कंपनी। अब ये देखें कि इसकी वजह से हुआ क्या, and how this may have impacted on the variances which have been calculated. इसको रिपोर्ट करना है हमने कि देखिए ये जो किया है आपने, उसमें आपने क्या किया, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस, उसमें आपने, हम दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं ना, बजटेड सेल्स माइनस रिवाइज सेल्स, और रिवाइज सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। तो आपने ये जो रिवाइज फिगर है ना, इसी को चेंज कर दिया। आपने 10,000 की बजाय, सॉरी, आपने ये सेल जितनी होनी चाहिए आपने इसको कम कर दिया। जब मार्केट साइज़ कम हुआ, जब आपने रिवाइज मार्केट साइज़ को ही कम कर दिया, तो रिवाइज सेल्स भी कम हो गई। जब रिवाइज सेल्स कम हो गई तो जाहिर सी बात है आपकी एक्चुअल सेल्स बढ़ गई, आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है। सो दिस इज समथिंग विच मस्ट नॉट हैव बीन डन बाय द कंपनी, राइट। तो ये बेसिकली उसका इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है।
ठीक है जी. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्पेशली इट्स पार्ट सी. सो बस यही है. ठीक है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.